अस्सलामुअलैकुम, फायजा नदीम ग्रामर सीरीज के सेकंड प्रोग्राम के साथ आई एम हेयर विद यू. डू यू रिमेंबर विच वीडियो वी हैड द लास्ट टाइम? It was the parts of speech. Today we are going to cover up the first part of speech, which is noun, names. You remember all the 8 parts of speech that we discussed in our previous video? I hope you do remember Mr. Ivan Cap as well. चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का लेसन. Quick recap. What is a noun? A noun is a naming word. इसम. दुनिया में जो चीज है उसका एक नाम है और वो नाम क्या है? नाउन. आप हैं, मैं हूं, पत्थर है, सितारे हैं, आसमान है. दुनिया में जो भी चीज है वो एक नाम रखती है और उस नाम को किस पार्ट ऑफ स्पीच से बुलाया जाता है? नाउन. Right? Nouns. Let's quickly go through the definition again. Noun is a naming word. A simple noun. किस चीज का? A name of a person, place, animal, thing, idea, feeling. Anything that has a name is a noun. Whether it exists physically or it does not exist physically. वो एक noun है. जैसे कि the teacher writes notes on the blackboard. Can you identify the nouns? Yes, I've highlighted them for you. The teacher, I am, writing notes, all these notes on the blackboard, in our case, the whiteboard. All these things, they are physically existing and they are a noun. Likewise, with great power comes great responsibility. How many of you are into superpowers? All of you. You like watching Superman, Spider-Man, even Harry Potter? Alright, so this is a very common phrase for all those super beings. With great power comes great responsibility. But can you see the power? You cannot see powers. But you know he has power or she has power. Can you see responsibility? You cannot see responsibility. लेकिन जिम्मेदारी आपके सरों पे भी है, जिम्मेदारी हमारे सर पे भी है. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पढ़ाएं ताकि आपका अच्छा ग्रेड आए और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छा सा पढ़े ताकि अच्छा सा ग्रेड ले. तो जल्दी से अच्छा सा पढ़ लें ताकि आप मैट्रिक के एग्जाम में, 9th के एग्जाम में ढेर सारे अच्छे मार्क्स लेके आए. I need to replace my keyboard. I is a noun. Keyboard is a noun. I hope we have revived the concept of noun. Let's move on to the second board and let's go ahead with our lecture. अब हम अपने lecture को आगे बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि what are the types of nouns. Nouns की कौन सी types हैं. Let's move on to the next board. Kinds of nouns. ठीक है? There are basically 4 kinds of nouns that I will be discussing today. आज मैं आपसे सिर्फ 4 kinds of nouns discuss करूंगी. सबसे पहले concrete and abstract noun. Concrete and abstract noun. Concrete nouns have physical appearances, whereas abstract nouns have no physical appearance. ठीक है? कॉन्क्रीट नाउन फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं. ये मेरा पेन है, ये कॉन्क्रीट नाउन है. ये व्हाइट बोर्ड है, ये कॉन्क्रीट नाउन है. ये इसके ऊपर मार्कर इंक है, ये कॉन्क्रीट नाउन है. इनको सबको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. ये मेरा हिजाब है, ये कॉन्क्रीट नाउन है. इन सबको आप देख सकते हैं, इन सबको आप टच कर सकते हैं. ये सब कॉन्क्रीट नाउन्स हैं. Whereas I have some ideas in my mind to teach you today, but you cannot see my ideas. आप नहीं देख सकते कि मैं क्या सोच रही हूँ. वो abstract noun है. मेरी सोच abstract noun है. ना आप उसे देख सकते हैं, ना मैं उसे देख सकती हूँ. ठीक है? जो
मैं अल्फाज बोल रही हूं और आप उनको सुन रहे हैं, क्या आप मेरी आवाज को और अल्फाज को देख सकते हैं? नहीं, आप उनको सिर्फ सुन सकते हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक, टेबल, चेयर, computers, mobiles, tabs, all these are concrete nouns. Whereas fear, anxiety, triumph, love, hatred, all these are abstract nouns. They exist, but you cannot see them. आप उनको नहीं देख सकते, वो दुनिया में exist करते हैं, वो मौजूद हैं, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते. For example, honesty is the best policy. कितनी दफा हमने ये phrase सुना है, Honesty is the best policy, honesty. But can you ever see honesty? आप मार्केट में जाके कह सकते हैं कि मुझे 4 रुपए की honesty दे दे. You cannot do that, ना? Honesty is something, a character trait that you have it. आपकी शख्सियत का हिस्सा. But you cannot see it, you cannot buy it, or you cannot sell it. आज मैं तुम्हें 25 रुपए की honesty दे देता हूँ, कल तुम मुझे 20 रुपए की बहादुरी दे देना वापस. We cannot do so, right? So these are certain character traits that we have. Honesty is the best policy. Anger is a strong emotion. Anger, hatred, they are strong emotions. They can break or make your characters. But all these emotions, all these feelings, all these ideas cannot be seen or touched. So they are all abstract now. Again, quick revise. Concrete is something that you can touch physically. Abstract is something that you cannot touch physically, but it is present there. Let's move on to the next type of noun, which is very common. You all know about it from the very childhood, from KG maybe. Common and proper nouns. Common nouns are the general names. Proper nouns are the specific names. Like that of a city, Lahore, country, Pakistan, day, Friday, month, September, school, the Light School, university, the University of Central Punjab. All these are common nouns, all those are proper nouns. What you need to be very careful about is that all the proper nouns have capital letters. Even the in a light and university is in capital letters, right? So the proper nouns, which are the specific names, should always be capitalized. Sometimes आप ये mistake करते हैं कि अपने copy में, अपने paper में, अपने classwork में, अपनी creative writing में proper nouns को small letters से और common nouns को capital letters से लिख देते हैं. अगर आपने earth लिखना है तो earth हमेशा capital letter होगा. Earth is the name of a planet. इसी तरह अगर आपने sun लिखना है तो वो कैपिटल लेटर्स में होगा हमेशा, कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं होगा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक नाम है, एक स्टार का और एक प्लैनेट का. इसी तरह अगर आपने कैट लिखना है तो वो स्मॉल लेटर्स में होगा, लेकिन अगर ये कैट आपकी टॉम है तो वो कैपिटल लेटर्स में होगा, राइट? ये बहुत बहुत कॉमन और बहुत बहुत माइनर मिस्टेक है जो आप अपने पेपर्स में करते हैं और जिनकी वजह से आप अपने मार्क्स लूज करते हैं. कीप दिस वेरी क्लियर इन योर माइंड कि प्रॉपर नाउन्स विल हैव कैपिटल लेटर्स एंड कॉमन नाउन्स विल ऑलवेज बी रिटन इन स्मॉल लेटर. डे जो है वो एक स्पेसिफिक दिन है, ठीक है, हर हफ्ते ये डे आता है, लेकिन एक स्पेसिफिक नंबर है इसका. दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज इन कैपिटल लेटर. हर साल दिन चढ़ते, हर साल नया महीना शुरू होता है, लेकिन वो महीना एक स्पेसिफिक मंथ है, इसलिए वो कैपिटल लेटर्स में से है, ठीक है. चलिए अब हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम तीसरे टाइप ऑफ नाउन की तरफ जाते हैं. कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? ग्रुप, ठीक है. अगर एक जैसे नाउन्स का ग्रुप एक जगह बैठा है तो उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, विच इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन.
राइट? अगर सेम स्पीशीज के सेम तरह के लोग, सेम तरह की नाउन्स एक जगह कलेक्ट हुए हुए हैं, ग्रुप हुए हुए हैं, तो दे फॉल अंडर द टाइप ऑफ कलेक्टिव नाउन. Now this is the most difficult part of English language because you cannot just invent your own collective noun. आप अपने collective nouns को invent नहीं कर सकते. आपको वही specific collective nouns लिखने हैं जो English language में specify हो गए, जैसे कि a bunch of grapes or a bunch of keys, a crowd of people, a flight of stairs, a pair of shoes, an army of soldiers, a swarm of bees, a flock of sheep. Right? These are specific collective nouns for specific type of nouns. अब जो common mistake 9th-10th के बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि उन collective nouns की जगह कोई भी word डाल देते हैं कि like we can have our own expressions and we are, जिसको कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ये नहीं होता बेटा इंग्लिश में. आपको यही कलेक्टिव नाउन लिखते हैं इन्हीं स्पेसिफिक नाउन्स के साथ. अगर आप भूल रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा, तो आप बजाय लाइक इफ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग कि शीप के साथ क्या था, इन द ऑर्किड वाज अ लॉट ऑफ शीप, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ शीप. अगर आपको फ्लॉक वर्ड नहीं आ रहा तो आप ग्रुप लिख दें, वो एक्सेप्टेबल होता है, वो आपके एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है. रादर देन यूजिंग समथिंग एल्स आप एक वर्ड ग्रुप लिख दीजिए. जैसे अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स है, द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स वेंट अपस्टेयर्स और द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स केम डाउनस्टेयर्स, ठीक है. आपको नहीं याद आ रहा फ्लाइट का वर्ड तो आप ग्रुप ऑफ स्टेयर्स लिख दें, ठीक है. वो आपके एग्जामिनर करेक्ट कर देंगे और आपको फुल मार्क्स भी दे देंगे. यहाँ मैंने एक जनरल जो कलेक्टिव नाउन्स यूज होते हैं वो लिखे हैं. अगर आप इन्हीं को याद कर लेंगे, इन्हीं को मेमोराइज कर लेंगे, तो आपका रिजल्ट इफेक्ट होगा और बेहतर हो जाएगा, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ नाउन विच इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल. अब मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट सबसे आखिर में क्यों रखा? क्योंकि आप बच्चे लोग सबसे ज्यादा इसमें गलती करते हो, इसके लिखने में, इसके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा यू मेक मिस्टेक्स इन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. रिमेंबर आई टोल्ड यू अर्लियर, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ नेम. चाहे वो पत्थर है, चाहे वो मछली है, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, इवन वो आइडियाज है, ठीक है. इवन वो फीलिंग है, इमोशन है, दे हैव अ नेम. सो सम थिंग्स कैन बी काउंट इन नंबर्स एंड समथिंग कैन नॉट बी काउंट इन नंबर्स. आप मुझे बता सकते हैं हाउ मेनी पेन्स यू हैव, हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन योर पेंसिल बॉक्स, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन योर बैग, how many notebooks are there in your bag, but can you tell me how many hair you have on your head? Can you tell me how many flowers there are in your garden? So the nouns are further subdivided into countable and uncountable nouns. Countable nouns कौन से होते हैं? Book, paper, pencils. Uncountable nouns कौन से होते हैं? Water, coffee, salt, sugar. So these are all uncountable nouns and these are countable nouns. अब आप क्या कर सकते हैं? Countable nouns के लिए आपके पास a, an और plural मौजूद है. A pencil, an omelette, an egg, eggs, 2 eggs, a dozen eggs, 5 pencils, 2 dozen pencils, right? But can you say a water? Can I have a water? No. You'll ask, can I have a glass of water? Measurement. ठीक है, एक glass of water उसकी measurement के साथ. इसी तरह से can you ask for a salt? No. A tablespoon of salt. A teaspoonful of salt.
a tablespoon of sugar, an ounce of sugar. So आप नंबर काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन्स का, लेकिन नंबर काउंट नहीं कर सकते, यूनिट काउंट करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स का. अनकाउंटेबल नाउन्स को आप हमेशा यूनिट में मेजर करते हैं, काउंटेबल नाउन्स को आप नंबर्स में मेजर कर सकते हैं. बट लेट्स सी कि आपके पास ऐसी पेंसिल्स पड़ी हुई है, यू आर टू लेजी टू काउंट देम अप, ठीक है, और यू वांट टू आस्क योर फ्रेंड हाउ मेनी पेंसिल्स ही हैज इन हिज पेंसिल बॉक्स. तो यू विल यूज द वर्ड हाउ मेनी फॉर काउंटेबल. Countable things, you will use the word how many. But for uncountable things, you will use the word how much. How much sugar do you want in your tea? How much coffee have you put in the coffee maker? Remember, for countable nouns, you can use how many. For uncountable nouns, you can use how much. ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बहुत मार्क्स लूज करेगा अगर काउंटेबल नाउन के साथ आपने हाउ मच लिख दिया और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आपने हाउ मेनी लिख दिया. इसको बहुत बहुत एहतियात, बहुत बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा. इसी तरह अगर आपने किसी को बताना है आई हैव अ फ्यू एग्स इन माई फ्रिज, ठीक है, आई हैव मेनी पेंसिल्स एट माई होम, I have a lot of empty notebooks to be written on. These are all for countable nouns. Whereas for uncountable nouns, you will say, I have a little sugar in the sugar pot. I don't have much water in my fridge, or I don't have much water in the water tank. I have a lot of salt to put into the gravy, ठीक है, to put into the noodles, because all of you are into noodles much as long as eating is concerned, है ना. तो काउंटेबल नाउन्स के लिए वीडियो पॉज करें, पॉज करके इसको दोबारा ये गो थ्रू करें कि काउंटेबल नाउन्स के लिए आप हाउ मेनी यूज करेंगे, नॉन काउंटेबल्स के लिए हाउ मच, काउंटेबल नाउन्स के लिए अ फ्यू, मेनी, अ लॉट ऑफ, नॉन अनकाउंटेबल के लिए अ लिटिल, मच एंड अ लॉट ऑफ. एंड पे जाने से पहले एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी जो आप कॉमन मिस्टेक करते हैं, जिससे आप बहुत बहुत महंगे मार्क्स लूज करते हैं. चलती हूं मैं अपने लास्ट बोर्ड की तरफ. दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. सबसे ज्यादा मैट्रिक्स के बच्चे इसमें मार्क्स लूज करते हैं, ठीक है. पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ और फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन सी मिस्टेक है जो आप सबसे कॉमन एरर करते हैं विदाउट रियलाइजिंग एंड देन लूजिंग मार्क्स. सबसे पहले तो लेट्स गो थ्रू द एग्जाम्पल. आई हैव 10 पेंसिल्स फॉर काउंटेबल नाउन्स. अली हैज 12 पेंसिल्स. सो अली हैज more pencils than I do, more pencils than I do, right? I have an ounce of sugar. Ali has 2 ounces of sugar. So Ali has more sugar than I do, because I have only 1 ounce of sugar and he has 2 ounces of sugar. So he has more sugar than I do. लेकिन जब मामला हम इसको बिल्कुल उल्टा दें, हम बिल्कुल इसको उलट कर दें और मैं आपसे ये कहूं कि आई हैव लेस आउंसेस ऑफ शुगर देन अली डज, ठीक है. अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखती हूँ तो मैं आपको ये कहती हूँ कि मेरे पास अली से कम चीनी है. आई हैव लेस आउंसेस ऑफ शुगर. इसी तरह से जब मैं ये कहूँ कि आई हैव लेस पेंसिल्स देन अली डज तो इनकरेक्ट होगा. यहां पे आपने वर्ड यूज करना है फ्यूअर, ठीक है. जब मेरे पास या किसी के पास कंपैरिजन में कम चीजें हैं तो अनकाउंटेबल के लिए हम यूज करेंगे लेस और काउंटेबल के लिए हम यूज करेंगे फ्यूअर. कीप दिस इन योर माइंड बिकॉज दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू वेरी एक्सपेंसिव मार्क्स.
कंपैरिजन में अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि कंपैरिजन में जब आपके पास कम चीजें होंगी तो अनकाउंटेबल के लिए लेस वर्ड है और काउंटेबल के लिए फ्यूअर वर्ड है। जल्दी से रिकैप कर लें, आज हमने क्या किया है। आज हमने किया है व्हाट आर नाउन्स, नाउन्स की डेफिनेशन रिकैप की है। फिर हमने टाइप्स ऑफ नाउन्स किए हैं, कौन से, कॉन्क्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल अपीयरेंस है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, लाइक योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, योर आइडियाज, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। उसके बाद हमने किए कॉमन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन्स जनरल नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नाम होते हैं, मेरा नाम, आपका नाम, ऑल दीज आर स्पेसिफिक नाउन्स। इसमें हमने जो चीज नोट की है वो ये की है कि कॉमन नाउन्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स, प्रॉपर नाउन्स आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, उसके बाद हमने किए कलेक्टिव नाउन्स और हमने ये याद किया है कि देयर आर नो चीट कोड्स फॉर कलेक्टिव नाउन्स। आपको कलेक्टिव नाउन्स एज इट इज सारे याद करने हैं और अगर आप थोड़े बहुत अपना याद कर लेते हैं तो दैट इज गुड इनफ फॉर यू टू गेन गुड मार्क्स। और अगर आपको किसी का भी कलेक्टिव नाउन नहीं याद आ रहा तो आप वर्ड ग्रुप यूज कर सकते हैं। और आखिर में हमने किए हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। वो नाउन्स जिनको हम वर्ड काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स हैं और जिनका हम नंबर काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है, और उनके कंपैरिजन में अगर काउंटेबल नाउन्स कम होंगे तो हम वर्ड लिखेंगे फ्यूअर और अनकाउंटेबल नाउन्स कम होंगे तो हम लिखेंगे लेस। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड द नाउन जेंडर, और उसके साथ नाउन सीरीज की मेरी वीडियो खत्म हो जाएंगी एंड देन आई विल मूव ऑन टू प्रोनाउंस एंड देयर टाइप्स। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।